show me. Ma'am, you are not audible. Unmute yourself first. Very good evening, dear participants. I, Pooja, welcome you all in our State AIF webinar, wherein we are celebrating TechnoFest. Yes, dear audience, it was your love, your learning, which has made us present over here. Now, what we did in the last webinars, we have learned how we can make wonderful PPTs, how we can do work on Excel, how we can make ourselves excel in Excel. We have also learned Gmail training too. And today we are going to learn about MS Word. So along with us, Ms. Preeti Saraswat ma'am has joined us as a resource person. Preeti ma'am, welcome you to our AIF State webinar. Thank you so much, Pooja ma'am. Very good evening, one and all who present here. I know there are few people, still we'll wait. Let's till then they will join. I'll give my introduction. I'll do, ma'am. I'll do that. I'll do that honor. Fine. I Okay. would love to honor. I would just really have to take this honor. Preeti ma'am is PGT English. She has joined us from Noida. She's from Radiant Academy. And as I told you, she's an AIF resource person too. And it's not only this, she has joined with us in all the state webinars. And not only this as well, she's also taking up many of other motivational webinars also. And this time she has taken up technical things which she wants to make our teachers learn. And not only teachers, in fact, I would rather say many of the professionals who really want to see that which are the hidden tools of MS Word. So as it's state webinar, so I would be requesting our resource person that she should be using 80% Hindi and 20% English, as I know she's PGT English. Ma'am, it's our tradition that in our state webinar, our resource person specifically, he or she, they use Hindi. So thank you so much for being there, Preeti ma'am, that you spared time and accepted our invitation to be there. Over to you. Let's see what is hidden in your basket. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Pooja ma'am. And you always be a helping source and everything for us. And whatever we are doing, it is because of you as moderator. And none other than Matthew sir, it's our mentor. So would like to thankful to both of you equally. It's really a pleasure of mine to be a part of it. And even the AIEF platform. So here I'm going to start my journey with a Hindi one. As we know that it's a state Hindi, a state series webinar. So हमें हिंदी भाषा को ही प्रयोग करना है. Many teachers wondering, sometimes they ask, क्योंकि generally हमारे English teachers भी join करते हैं. I generally share in my English group also, तो पूछते हैं कि why you using Hindi while conducting webinars, it's allowed. So this is the actually the quality of our webinar, because it always be bilingual. We never go for कि हम हमेशा पूरा कुछ हिंदी में बोले, और वैसे भी I think we are not capable enough कि हमारी इतनी शुद्ध हिंदी है. हम पूरी कोशिश करते हैं, और अब तो काफी कुछ प्रैक्टिस भी हो गई है कि हम कुछ शब्दों को हिंदी में करें, और हमें से नए शब्दों को सीखते भी हैं. जैसे आज मेरा एक टेक्निकल वर्ड का टेक्निकल फील्ड से MS वर्ड से एक टेक्निकल वेबिनार ले रही हूँ, तो बहुत सारी चीजें थी जब हम ये डॉक्यूमेंट दस्तावेज पढ़ते हैं और काफी सारे यूजर्स को उपयोगता इस तरह यूज करते हैं. तो इट इज गुड. मैं कोशिश करूंगी कि मैं शब्दों को हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करूं. सो वेरी वेलकम टू वन एंड ऑल हु जॉइन. Actually we believe in quality, not the quantity, but whatever. आप आज यहाँ आए हैं, इतना समय अपना समय स्पेयर करके हमारे साथ हैं, तो जरूर आज आप कुछ लेके जाएंगे. वेरी फर्स्टली वुड लाइक टू आस्क, एम आई ऑडिबल? क्योंकि थोड़ा सा आज वॉइस का इशू है, मेरी वॉइस थोड़ा सा लो है. So want to confirm first, my audience, Poonam ma'am, Cherries, I think the name is there. Can you give me the thumbs up if my voice is audible to each and everyone? Audible. Thank you so much, ma'am. Rekha ma'am, oh my lovable one. Thank you so much, Rekha ma'am, for joining.
And you know, one of our companions, Sumita ma'am, always be there, but I got the message she will be not there due to some emergency. But it's okay. We always have a helping hand. Thank you so much joining each and everyone. Now let's start. थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इसकी प्रस्तावना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। वैसे तो हम सभी इस चीज से बिल्कुल वेल नोन है, हम जानते हैं कि MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको हम MS वर्ड के नाम से जानते हैं, एक्चुअली है कि अगर मैं पूछूं तो सब लोग कहेंगे कि यस इट इज वेरी नोन डॉक्यूमेंट, यू नो, टूल है जिसमें हम सभी अपने क्वेश्चन पेपर टाइप करते हैं। विदाउट दिस यू नो द टूल, हम कुछ भी टाइपिंग स्पीड में जब टाइप कर रहे हैं तो इट्स गोइंग टू बी इनकम्प्लीट। तो लेट्स सी, थोड़ा सा हिंदी में भी इसका हम लोग यू नो एक प्रारूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। तो इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। अगर माइक्रोसॉफ्ट का अगर मैं हिंदी में परिचय दूं तो एक्चुअली ये एक ऐसे टूल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसे हम कहते हैं। अक्सर हम इसे वर्ड के नाम से भी जानते हैं, जरूरी नहीं कि हम इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोले, जनरली इट्स कॉल्ड वर्ड। और ये एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। इसे कंप्यूटर की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। तो इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को दस्तावेजों को यानी कि डॉक्यूमेंट्स को बनाने और उनको सेव करने की अनुमति देता है, हमें अलाउ करता है। वी कैन सेव आवर डॉक्यूमेंट, हम अपने दस्तावेज को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। और अन्य वर्ड प्रोसेसर की तरह इसमें भी हम दस्तावेजों को या डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए कुछ ऐसे हमारे सहायक उपकरण होते हैं, एक हेल्पिंग टूल्स होते हैं, जिनसे हम थोड़ा फैसिनेटिंग या इसको और हम उभार सकते हैं। तो आइए थोड़ा और इसके समक्ष हम जानते हैं। ये कुछ फीचर्स हैं जो कि आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये कुछ हमारे डे टू डे लाइफ का पार्ट बन चुके हैं, स्पेशली हमारे टीचिंग फील्ड का। तो अगर हम इस कॉमन फीचर्स को एक बेसिक क्विक में लेके चलेंगे, मैं आपको कुछ इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगी। और बेसिकली अगर जब MS वर्ड की बात कर रहे हैं तो इसका एक मेन प्रोस्पेक्टिव, जो मेन एक सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है, वो थोड़ा मैं इससे पहले शेयर करना चाहूंगी। एक्चुअली ये एक ऐसा वर्ड प्रोसेसर भी मानते हैं इसको, इसका वर्ड प्रोसेसर जो दस्तावेजों को ओपन करना, क्रिएट करना, कुछ एडिटिंग, उसमें हम कुछ चेंजेस करें, फॉर्मेटिंग, जैसे हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि नहीं हमारे अनुरूप नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम उसको भी थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। हम चाहे हमने जो कुछ बनाया है अपने MS वर्ड में, हम दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं, इसको प्रिंट ले सकते हैं। ये सब करने के अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि MS वर्ड में फीचर्स हैं। सो MS वर्ड क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक भाग है। तो अगर हम MS वर्ड कहें, वर्ड कहें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहें, इट्स ऑल गोइंग टू बी सेम पार्ट। तो बहुत जल्दी से हम इसके कुछ फीचर्स, कॉमन फीचर्स है जो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी, और एंड में अगर आपको कुछ डिटेल में इसके बारे में जानना है तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि इस बेसिक फीचर्स के साथ आज मैं आपके समक्ष ऐसे +15 हिडन फीचर्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो शायद कहीं ना कहीं है तो बहुत छोटी बात है, बट हम जनरली हमारे एक्नॉलेजमेंट में नहीं है, और कहीं ना कहीं हम इसके डे टू लाइफ में यूज नहीं कर पाते। और जब हमें पता चलता है, और इसमें से बहुत सारी चीजें तो मैंने खुद 2 दिन पहले सीखी है, तो मुझे जरूर लग रहा है कि आपके काम आएंगी। और मैंने भी इसके ऊपर काम इसीलिए किया है कि आज मैं आपको कुछ नई चीज देता हूँ। तो वेरी फास्टली, बहुत जल्दी से मैं कुछ की पॉइंट जो बेसिक्स है उनके ऊपर बात करूंगी। सबसे पहले कि मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि MS वर्ड में जो हमारे दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट में, उनको हम क्रिएट और सेव कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। हम इसमें एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, मतलब हमने जो भी लिखा है, हम उसमें जो जो चेंजेस करना चाहें हम इसके अंतराल में कर सकते हैं। हमने पूरा एक पैराग्राफ लिख लिया, हमें दूसरी भाषा में चाहिए, हमें उसकी लैंग्वेज को चेंज करना है, फॉर्मेटिंग करना है, वो भी कर सकते हैं। यू नो देयर इज टू एक्सपेक्ट हेडर एंड फुटर, हम सभी लोग उसके बारे में जानते हैं। तो अप टू बॉटम इसके भी तरीके हैं, किस तरह से हम इंसर्ट करके किस तरह से हम इनमें चेंजेस करते हैं। स्पेलिंग, ग्रामर एरर्स, हम उनको सिलेक्ट करके किस तरह से उसमें अंदर रेड लाइन हमें दिखाती है तो स्पेलिंग एरर्स होती है, हम अवॉइड भी कर सकते हैं, उसके साथ भी जा सकते हैं। सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, इंसर्टिंग सिंबल्स, एक ऑप्शन होता है इंसर्ट, उसमें हम बहुत सारी चीजें, क्लिप आर्ट, सिंबल्स, मैथ्स के टर्म, ये सारी चीजें डाल सकते हैं। क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, पिक्चर्स, पेज सेटिंग, यस हमारे पास एक लैंडस्केप मोड, पोर्ट्रेट मोड, जो भी हम पेज की सेटिंग, अलाइनमेंट्स वो कर सकते हैं। बुलेट्स दे सकते हैं, बॉर्डर और शेडिंग कर सकते हैं। सर्च अ वर्ड एंड रिप्लेसिंग इट बाय अनदर वर्ड,
एंड इंसर्टिंग टेबल्स। ये सारी चीजें तो बेसिक है और हम इसके ऊपर शायद काम भी करते होंगे क्योंकि हम हर सब्जेक्ट के पेपर्स को बनाते हैं। इन चीजों को आज शॉर्टकट में कैसे करेंगे इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो कि कीबोर्ड के शॉर्टकट्स हैं। ये इसका लिंक मैं आपको जरूर दूंगी। अभी हम इसके ऊपर ना बात करते हुए मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल एमएस वर्ड में लेके जाती हूँ। और हम पहुंच गए यहाँ पर एमएस वर्ड। फाइन, आप सबको मेरे एमएस वर्ड की स्क्रीन दिख रही होगी? यस मैम। ग्रेट। देखिए, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज पे पहुंचते हैं। बहुत सारी चीजें जब हम लोग फैसिनेट करेंगे, लिखने के बाद चीजों को चेंज करेंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये लैंग्वेज टीचर्स के लिए है। तो द गिफ्ट फॉर यू कि भाई सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हम अनसीन पैसेज क्रिएट करने जाते हैं तो इट्स अ बिग बर्डन कि अब हम इतना सारा पैसेज टाइप करेंगे, कहाँ से ले, कैसे कॉपी पेस्ट करें। और कभी कभी हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो स्पेसिंग इशू भी हो जाता है, तो उसकी सेटिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो here I'm going to show you a code। मैं कोड टाइप कर रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं कोड को रिपीट भी करती जाऊंगी और हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। वेरी फर्स्टली आपको कुछ सिंबल्स यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, टाइप करने हैं। सबसे पहले हमें इज इक्वल टू का साइन, इज इक्वल टू का साइन देना है। इट इज विजिबल, हमने इज इक्वल टू का साइन दिया। उसके बाद हमने स्पेलिंग लिखी RAND। फाइन, हमने इक्वल टू का साइन लगाया, हमने RAND। उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज किया और ब्रैकेट ओपन किया और क्लोज किया। एंड हियर इफ वी गॉट एंटर, अब मैं एंटर प्रेस करने जा रही हूँ, हमारे सामने एक पैसेज आ गया, बना बनाया गूगल की तरफ से। दिस इज द हिडन फीचर ऑफ एमएस वर्ड जो कि बहुत कम लोगों को पता है। इटसेल्फ ये हमारे रीडिंग के लिए काम आ सकता है। हम छोटे से प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस पैसेज बच्चों को देना चाहते हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कुछ पैसेज सर्च करें। अगर हमें लग रहा है कि नहीं, हमें डिस्क्रिप्टिव पैसेज देना है, दिस पैसेज नॉट इनफ फॉर यू, तो हम एक काम और कर सकते हैं। चलिए मैं इसे डिलीट कर रही हूँ। इस पैसेज को मैं और बड़ा कर सकती हूँ, छोटा भी कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंगली। मैं इसमें पैराग्राफ भी चेंज कर सकती हूँ। सो लेट्स सी, देयर आई हैव सिलेक्टेड एंड इट्स डिलीटेड। फाइन, मैं फिर से वही काम कर रही हूँ। मैंने इस इक्वल टू का साइन लगाया, मैंने स्पेलिंग लिखी RAND। फाइन, मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब इसमें अगर देखें, आपको चाहिए कि मुझे 3-3 लाइन के 3 पैराग्राफ चाहिए, तो 3,3, ठीक है। 3, पहले हम लाइंस को लिखेंगे कॉमा, उसके बाद हमें कितने पैराग्राफ चाहिए, पहले लाइन फिर पैराग्राफ, उसके बाद हमें ब्रैकेट को क्लोज करना है। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी, जिस फॉर्मेट में मुझे पैसेज चाहिए वैसे ही आ जाएगा, और ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया। So here from 3 lines I got 3 passages. Fine, जो 4th लाइन है वो सेंटेंस को कंप्लीट कर रही है। उसी तरह से मैं बहुत सारे पैसेजेस दे सकती हूँ। जैसे मैं बड़ा पैसेज क्रिएट करके दिखाना चाहती हूँ आपको कि 9 to 10 पैराग्राफ। मैंने डिलीट किया, दिस इज लास्ट वन, इज इक्वल टू साइन लगाया, RAND। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट किया एंड देन मैंने लिखा कि मुझे 4 लाइन वाले, एटलीस्ट मुझे तो 8 पैराग्राफ तो चाहिए। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास एक बड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पैसेज यहाँ पर आ गया। यू कैन सी हियर डिस्क्रिप्टिव पैसेज मेरे सामने है। तो इस तरह से हम अपने पैसेज को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आई थिंक लैंग्वेज टीचर को एक राहत तो मिल गई होगी। फाइन, अब क्वेश्चन यू हैव टू क्रिएट बाय योर ओन। थोड़ा सा इनोवेटिव तो होना पड़ेगा, क्रिएटिव होना पड़ेगा। पैसेज मैंने दिया, क्वेश्चन आप इसको जिस तरह से, आप इसको रीडिंग मटेरियल के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए भी यूज कर सकते हैं, असाइनमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ टाइम फॉर अनदर शॉर्टकट। Preeti ma'am, here I would just like to take up one question. As you have just inserted this passage, अब इसके लिए मान लो हमें टॉपिक कैसे आपने चूज किया किसी भी चीज को? फाइन फाइन, सी दिस इज ऑल अबाउट, हमें हम इसमें टॉपिक तो नहीं डिसाइड कर सकते बिकॉज इट इज यू नो इनबिल्ट। ये गूगल की तरफ से अपना है, हमने इसमें कुछ डिसाइड नहीं किया कि हमें किस तरह का चाहिए, हमने सिर्फ फॉर्मेट मांगा है। सो टीचर हैज टू वर्क फॉर इट। हमें ये इसके टॉपिक या इसके क्वेश्चंस को, इन पैसेज को पढ़ने के हिसाब से हमें एडिट करना पड़ेगा। हमें जो एमएस वर्ड दे रहा है वो हमें सिर्फ पैराग्राफ दे रहा है। तो ये शॉर्टकट है अबाउट कि हमें कितने पैराग्राफ की लाइन चाहिए, कितना शॉर्ट पैराग्राफ चाहिए।
दैट इज आवर टास्क, क्योंकि हो सकता है कभी ना कभी हम इसे सिर्फ ASL प्रैक्टिस के लिए ले रहे हो। हम हो सकता है कि ये बच्चों को स्क्रीन के सामने दे एंड यू हैव टू डू अ रीडिंग प्रैक्टिस, सॉरी स्पीकिंग प्रैक्टिस, तो बच्चे इसको बोल के आप अपनी उस एक्सेंट के ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो दिस इज ओनली अ रिटन मटेरियल, दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ जिससे कि हम डिवाइड कर दें कि ये पैराग्राफ इससे रिलेटेड है। इट एनीथिंग ये रैंडमली हमें वर्ड ये रैंडमली कोई भी पैसेजेस देते हैं? yes yes absolutely because we Based are on any topics? yes absolutely because And we are every time running it would be a different, Kritika? RAND, it's a random topic। अगर आप कुछ और लिखोगे तो कभी ये कुछ और देगा। मैंने यहाँ पर RAND लिखा, मुझे कुछ और मिला। यस्टरडे कल मैंने कुछ ट्राई किया तो मुझे किसी और टॉपिक पे ये पैराग्राफ मिला। तो रैंडम MS Word will give you any topic। ओके, आपने RAND जो लिखा है वो इसका कोई फॉर्मूला है या आपने कोई रैंडम लिखा है इसीलिए वो है? आप कर्सिव भी कैप्स भी यूज कर सकते हैं और कर्सिव भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल कैप्स में करके दिखाती हूँ। अभी पहले मैंने इसको बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें स्पेसिंग नहीं रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम स्पेसिंग नहीं रखेंगे। अब मैं आपको अगेन दोबारा दिखा रही हूँ। मैंने इक्वल टू साइन दबाया, फाइन, इक्वल टू के बाद अब मैं कैप्स में RAND लिख रही हूँ। पहले मैंने कर्सिव में लिखा था। लेट्स सी कि क्या होता है। मैंने कैप्स दबाया RAND, फाइन। उसके बाद मुझे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करूंगी। अगर मुझे स्पेसिफिक चाहिए कि भाई 3 पैराग्राफ के मुझे 3 लाइन के 4 चाहिए या 4 to 5, ये मैं ब्रैकेट में क्लियर रखूंगी। अगर मैं नहीं लिख रही हूँ तो इसका मतलब बेसिकली आपके पास 3 पैराग्राफ से ज्यादा नहीं आएंगे। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, मतलब मिनिमम वन इज 3। अब 3 के बाद आप इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी लिखोगे वो उसके अकॉर्डिंगली इसको एडिटिंग कर देगा। तो अभी मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा है। अब इसके बाद तुरंत मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगी। कैप्स की पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एंटर ही प्रेस करना है। नाउ हियर आई प्रेस एंटर और देखिए मेरे पास इनका रैंडम एक और दूसरा पैराग्राफ आ गया, बिल्कुल डिफरेंट है पहले वाले से। तो रैंडम कोई भी पैराग्राफ आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम RAND कैप्स दबाएं या स्मॉल दबाएं। बेसिक थिंग ये है कि हम जो भी टाइप कर रहे हैं इसमें हमें स्पेसिंग नहीं देनी है। दिस इज द मेन बेसिक पॉइंट, राइट। I'll share this as well। आप कहीं लिख भी सकते हैं। I'm going to repeat कि सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, बिना स्पेसिंग के हम RAND लिखेंगे। हम इसमें कर्सिव सॉरी कैप्स एंड स्मॉल दोनों यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे। ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज में आप कुछ भी स्पेसिफिक चाहिए तो लिखिए। अगर आप नहीं लिखना है तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे एक रैंडम पैराग्राफ आपके सामने आ जाएगा। Kriti ma'am, we are getting message in chat box. This seemed to be the same paragraph which you earlier used. Wait, didn't get it. That means, ma'am, you are asking this is a same paragraph. You see here it is. You can easily change the formatting. Second one, because हमने यहाँ से skyline limit देखिए, यहाँ से मैंने I'm getting enter, यहाँ से मैंने same 3 paragraph लिया था क्योंकि हम one time we are using। हम एकदम टाइम टू टाइम वी आर चेंजिंग दिस। जैसे अभी मैंने 5 to 3 मिनट्स किया तो गोइंग टू बी सेम। आप नेक्स्ट डे करेंगे समथिंग एल्स, तो इट्स रैंडम। तो ऐसा नहीं, अगर हम क्योंकि हम कंटिन्यूस प्रोसेस में कर रहे हैं ना, सो इट्स गोइंग टू बी सेम वन। बस हम इस अलाइनमेंट इसका चेंज कर सकते हैं कि 3 4 5 दैट इट विल एडिट। हम इसके पैराग्राफ के टॉपिक को चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इट्स इज गिवन बाय द MS Word, दैट इज रैंडम। वी कैन नॉट चेंज द टेक्स्ट और द टॉपिक or the content। So yeah, you can use it one time uses। अगर आपको similar one लग रहा है तो you can go for the one time uses, but you can try or after many days or after some time maybe it will give you the different topic। So but first time you can use it। So we can see it। I think I'm audible enough। The thing is clear, the code is clear। Okay, let's move to the second code। ऐसे ही there I have 4-5 codes। ये code था पैराग्राफ के। Now it sometimes happen कि जब हम कोई एक चीज पैराग्राफ या हम कुछ भी अपना टास्क फिनिश करते हैं तो आफ्टर दैट वी नीड टू मार्क अ लाइन। हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होती है पैराग्राफ के बाद। तो वी हैव टू गो, हम कहाँ जाते हैं, अलाइनमेंट में जाते हैं। हम यहाँ पर लाइन देखें, कंसीडर द कर्सर, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, अंडरलाइन लगाएंगे। नो, इसके लिए भी मेरे पास एक शॉर्टकट है। आई एम गोइंग टू राइट ओवर देयर। हम यहाँ पर आप देखेंगे कि डैश है 1 2 3 ओनली 3 टाइम। देखिए मैंने डैश वर्ड है, आप प्लस साइन के पास ही एक बटन है डैश,
ठीक है, आपने 3 बार डैश डैश बटन, आपने डैश डैश बटन 3 बार प्रेस किया, उसके बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करने जा रही हूँ, हमें एक लाइन मिल गई। गेट इट? हमने क्या किया, हमने 3 टाइम्स, बट नंबरिंग मैटर्स, 3 टाइम्स हमने डैश 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 टाइप किया। अब हमें, ये बहुत ही थिन लाइन है, हमें थिक लाइन चाहिए। अगेन वी हैव ऑप्शन अंडरस्कोर। देखेंगे आप कि जहां पर डैश साइन है वहीं पर अंडरस्कोर भी है, तो आपको शिफ्ट के साथ जाना पड़ेगा। 1 2 3, फाइन, अंडरस्कोर 3 टाइम्स, एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर। वी गॉट द थिक लाइन। तो अगर हमें पतली लाइन चाहिए तो हम डैश 3 टाइम्स टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अगर हमें उससे मोटी थोड़ी सी लाइन चाहिए तो हम अंडरस्कोर 3 टाइम प्रेस करेंगे एंड वी गॉट अ थिक लाइन, हमें एक मोटी लाइन मिलेगी। अगेन बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट, और ये आपके पैसेज के अकॉर्डिंग ही सीखते, क्योंकि क्या होता है कई बार लाइन हमें छोटी बड़ी करनी होती है, तो हमें उसका साइज अलाइनमेंट में बहुत टाइम लगता है। तो हम ये सिर्फ सिंपल सी चीज है कि 3 बार डैश, अगर हमें पतली लाइन चाहिए, और 3 बार अंडरस्कोर एंड यू हैव टू प्रेस एंटर, और हमें ये लाइन मिल जाएगी। द सेकंड वन, अब लाइन के वी हैव 4 पेजेस, हमारे पास 4 पॉइंट्स है। अगर ये आप देखेंगे स्टार बना हुआ है, वी गॉट अ स्टार ओवर देयर, 8, जहां पर 8 लिखा हुआ है ना, आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे यहाँ पे स्टार है, तो शिफ्ट दबा के आप 1 2 3, नंबर हमेशा सेम रहते हैं 3 टाइम्स। अगर आप 3 टाइम्स स्टार प्रेस करते हैं और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको डॉटेड लाइन मिलेगी। Here we got a dotted line. So number is 3 common. Fine. Now again, अगर हम is equal to को 3 टाइम प्रेस करते हैं, 1 2 3, हमने is equal to को 3 टाइम प्रेस किया और हमने जैसे ही एंटर दबाया, हमें डबल लाइन मिल गई, डबल लाइन। फाइन। अब अगेन हमारे पास ऑप्शन है हैश, हैश टैग 1 2 3, इसके बाद एंटर। लेट्स सी कि हमें एक 3 लेयर लाइन मिलेगी, एक मोटी और पर नीचे थिन लाइन, 3 लाइन्स। नाउ अगेन देयर इज अ साइन, जहां पर टैब के ऊपर एक साइन होता है टिल्ट वन, ये भी हमने 3 बार प्रेस किया, और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें जिगजैग लाइन मिलेगी। वी गॉट जिगजैग लाइन। So these are the lines. इसमें एक चीज कॉमन है कि everything we have to type 3 times, और उन 3 टाइप्स के बाद प्रेस एंटर। मैम लास्ट में क्या बताया आपने, लास्ट में कौन सा बताया था? There is a sign, मैम, there is a tilt, जैसे स्नेक साइन होती है ना, टैब के ऊपर है, हमें कोई भी साइन एंड सिंबल 3 टाइम टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है। यू कैन सी टैब के ऊपर एक साइन है, आई एम गोइंग टू शो इट अगेन मैम। टैब के ऊपर एक साइन है 1 2 3, आप अपने कीबोर्ड में जाएंगे तो देखेंगे टैब के ऊपर 1 के साथ में बिफोर वर्ड देयर इज अ साइन। आप 3 टाइम टाइप करने के बाद जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, दिस इज एक्चुअली अप्रॉक्सीमेट। Pardon, ma'am? Nothing, Preeti ma'am. We continue. Okay. So should I continue? Yes, ma'am. Yes. Okay, get it. So I have done again. I'll just request participants. Your voice is actually. Yes, actually, this sign is actually known as. This sign is the sign of approximation. Yeah, sign of approximation. She wants to tell. It's a request to the participants. Please, before unmuting yourself, you raise your hand. That looks more, it looks better, because otherwise the resource person would get interrupted. So I would really request to all the participants, if they have to ask anything or share anything, kindly raise your hand. Shweta ma'am will give you a chance. Once I complete, I'll give a chance. You can raise your query. Fine. And due to your, you're not properly audible, so I didn't get the point, but surely I'll give you a chance once I complete this. Fine. So I'm continuing now. Now next one I have worked about. So these are the lines. With 3 symbols type cut, and after that when we press enter, we got these type of lines. Now again, when we have to mention the symbol, हम क्या करते हैं? You have to go for insert. See, हम insert में जाते हैं और हमें जो भी ऑप्शन टेबल चाहिए, हम यहाँ से भी have to search picture, clip art and all. इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं. But I have another shortcut. हम insert में नहीं जाएंगे. We have again some symbols, like if you have to write copyright, एक symbol है copyright, हमें अगर टाइप करना है तो इसका एक कॉमन कोड है कि ब्रैकेट्स. We have to press the
start the bracket. और अगर हम यहाँ पर, yes पूछा मैम? Yeah, प्रीति मैम, actually participants they are wanting कि आप एक बार इनके जो symbols दोबारा से repeat करके इनको बता दें. Sure. Even what I planning that I'll write over it in a chat box, but still मैं अभी इन सारी lines के symbol फिर से repeat करती हूँ. Fine. Very firstly अगर हमें एक पतली line चाहिए, बहुत ही first वाली line है, तो हम जो dash वाला word है वो 3 बार dash, सबसे पहली जो हमारी first वाली line है, इसके लिए हम dash 3 बार प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे. सेकेंड वन, अगर हमें मोटी वाली लाइन चाहिए तो हम अंडरस्कोर सिंबल को 3 बार प्रेस करेंगे. फाइन. थर्ड, जो हमारी डॉटेड लाइन है इसमें स्टार को हम 3 बार प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे. फाइन. अब आ गई हमारी डबल लाइन. डबल लाइन के लिए हम इज इक्वल टू वाला साइन. अब ये मुझे भी थोड़ा रट गई है क्योंकि देखिए इनकी लाइन से ना मिलते जुलते ही सिंबल है. पहले मुझे भी देखना पड़ता था. तो जो डॉटेड वाली है वो स्टार से मैच कर रही है और जो डबल लाइन वाली है वो इज इक्वल टू से मैच कर रही है. तो इज इक्वल टू 3 बार प्रेस करेंगे तो डबल लाइन मिल जाएगी. 3 लेयर लाइन के लिए हम लोग जो हैश जो साइन होता है, जो यू कैन एबल इट, आई डू इट अगेन, दिस वन हैश, ठीक है. So this one, the symbol we have to type 3 times. Common है कि सबको 3 टाइप बारी टाइप करना है. Zigzag के लिए we have to type, there is a symbol. Here I will show you this one. You have to type 3 times. Shift दबाना है उसके बाद, क्योंकि जो नंबर के ऊपर साइंस है वो शिफ्ट दबा के आपके पास आएंगे. I thought it's common, तो मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि जो 1 2 3 नंबर्स के ऊपर साइन है वो आपको तभी मिलेंगे जब आप शिफ्ट बटन दबाने के बाद उनको प्रेस करेंगे. फाइन. सो दीज आर द साइंस. इनको 3 बार प्रेस करना है और कॉमन है कि एंटर ही प्रेस करना है. यू विल गेट ऑल दीज लाइन्स. होप इट इज क्लियर. So yes, we can continue, Pridima. Okay, fine. So I'm going to now the second phase is symbol. Firstly, we talk about paragraph. Second is line. Third one is symbol. Whenever we need any symbol like copyright, trademark, और the registered mark, तो हमें बहुत सर्च करना पड़ता है, insert में जाना पड़ता है. इसके लिए भी कोड्स हैं. Fine. So very firstly is copyright symbol. We have to start the bracket and after that we have to write C and we have to close the bracket. जैसे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कोई की एंटर प्रेस नहीं करनी है तो कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा. Got it? I am repeating again. Bracket start, type C and जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्लोज ब्रैकेट को प्रेस करेंगे, कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा. फाइन. अगेन द नेक्स्ट सिंबल इज ब्रैकेट स्टार्ट. सिंबल सारे ब्रैकेट से स्टार्ट होंगे. दैट मींस हम अंडर द ब्रैकेट के अंदर जो भी एक अल्फाबेट टाइप करते हैं तो वो सिंबल में टर्न हो जाते हैं. नाउ गो फॉर द ट्रेडमार्क सिंबल. ट्रेडमार्क सिंबल में हम लिखेंगे, हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया, वी हैव टू राइट P एंड M. जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगी ये सिंबल में टर्न हो जाएगा. ब्रैकेट क्लोज. अब देखेंगे यहाँ पे TM. ठीक है. दिस इज ट्रेडमार्क सिंबल. नाउ अगेन इज रजिस्टर्ड मार्क. जैसे हमें एक सिंबल चाहिए होता है रजिस्टर्ड मार्क. आई राइट समथिंग फर्स्ट. जैसे मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर. अब इसके बाद मुझे एक साइन चाहिए तो वी हैव टू राइट अगेन. हम ब्रैकेट स्टार्ट किया, वी हैव टू राइट R और जैसे हमने ब्रैकेट क्लोज किया C. इट्स सो स्मॉल, नॉट विजिबल. मैं इसका साइज बड़ा करके देख लेती हूँ सो दैट इट्स विजिबल टू यू. तो ये एक टर्म साइज जो है ये ट्रेडमार्क का साइन ले लेता है. फाइन. शिफ्ट करना पड़ेगा इसका साइज इंक्रीज करने के लिए. सो वी मूव फॉर द नेक्स्ट वन. लेट्स सी. आई नो it is understood to all. It is clear ना. ये जो R वाला मार्क है आपको विजिबल नहीं हो रहा है, छोटा है, बट इस रजिस्टर्ड मार्क बोलते हैं इसको, R और ये सर्कल. गेट इट. तो हमने 3 सिंबल सीखे. सबसे पहले कॉपीराइट. सेम चीज है कि हमें ब्रैकेट स्टार्ट करना है, C टाइप करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है. वी गॉट कॉपीराइट. अगेन हम ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं, TM लिख रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, वी गॉट TN ट्रेडमार्क. कंप्यूटर मतलब वो तो मैंने एक वर्ड लिख दिया है सो दैट इट इज विजिबल. हम सिर्फ ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं, हम सिंपल R लिख रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, वी गॉट रजिस्टर्ड मार्क. नाउ अगेन देयर इज दिस इज टाइम फॉर इमोजीज. हमें इमोजीज के लिए इंसर्ट एक प्ले पार्ट या कुछ चीजों में जाना पड़ता है. कभी कभार नहीं होते तो हमें डाउनलोड करना पड़ता है. कैसे हम कोड से अपने इमोजी खुद क्रिएट कर सकते हैं. लेट्स सी. वी हैव टू टाइप
कॉलन, दिस इज सेमीकोलन, शिफ्ट आप दबाएंगे तो आपको कॉलन मिलेगा, इज इट विजिबल? कॉलन। जैसे हमने कॉलन दबाने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट वाला बटन, हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया, देखिए सैड इमोजी आ गया, वी गॉट सैड इमोजी। आप हैप्पी इमोजी बनाएंगे, अगेन वी हैव टू गो फॉर कॉलन, और हम अब यहाँ पे नो डिफरेंट ब्रैकेट है, क्लोज वाला ब्रैकेट, क्लोज, एंड ये हमारा फिर से सेट बना क्योंकि हमने क्लोज ही कर दिया, ओपन में जाएंगे, फिर से करेंगे, वी हैव टू राइट कॉलन, फाइन, देन वी हैव टू क्लोज इट, हैप्पी। सो सिंपल। अगर हम स्टार्ट ब्रैकेट के साथ जा रहे हैं कॉलन में तो सैड इमोजी, अगर हम कॉलन के साथ ब्रैकेट ओपन में जा रहे हैं हैप्पी इमोजी, सिंपल। कॉलन ब्रैकेट, कॉलन ब्रैकेट, सिर्फ दो चीजें हैं, जो ब्रैकेट का एक साइड लगाएंगे वो एक हैप्पी में जाएगा, एक साइड में जाएगा, द सेम वे, फाइन। दिस इज द टाइम एरोस, बुलेट्स, ये भी हम इंसर्ट करके देनी पड़ती है, बट कोई बात नहीं, हम अपनी बुलेट्स भी खुद क्रिएट करेंगे। देयर इज अगेन अ सिंपल कोड जिससे हम अपने बुलेट क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी, दिस इज अ लेस देन साइन, हियर यू कैन सी, we have to go shift और हमें less than sign मिलेगा, then we have to mark 3 times dot dash dash, 1 2 3, and after that we press enter. Wait, I'll go for first we'll go for the arrow sign. Wait, 1 2 3, 2 is equal to sign, not 2 is equal to sign, and then we have to go for less than arrow bullet. Got arrow, हमने क्या किया, 2 is equal to sign and here it is less than and greater sign। आप देखेंगे शिफ्ट के पास ही 3 एरोज हैं, एक ग्रेटर देन है, एक लेस देन है, तो हम इज इक्वल टू के बाद अगर ग्रेटर देन साइन कर रहे हैं तो लेफ्ट एरो, तो इज इक्वल टू के बाद अगर हम लेफ्ट एरोज के लिए हम लोग यूज करेंगे लेसर देन साइन, और राइट एरो के लिए हम करेंगे ग्रेटर देन साइन। तो इस तरह से हम इज इक्वल टू के साथ एरो अपनी बुलेट्स खुद से क्रिएट कर सकते हैं। I'll repeat for you. Here I'll do it. जैसे हमने सबसे पहले इन साइन लिया, then we have to write 1 2 3 and 1 2 3, oh, it's 2. We have to remember the number. पहले 3 थे, here it is 2. So different arrows, जहां से हम लोग 2 is equal to के बाद हम जो भी कॉलन लेसर देन ग्रेटर देन कर रहे हैं, एरो विल टर्न इन दिस फॉर्म ओनली। नाउ एक हिडन फीचर है जो ऑलरेडी इसमें होता है, जो हमें नहीं पता होता, हम उसके लिए भी फॉन्ट के लिए मेहनत करते हैं। जैसे हम लोग रोमन में फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखते हैं ना, so we have to write 1 and we have to write S and T, तो nothing happened। फिर हम एस टी को ऊपर लिखने के लिए क्या करें, we have to do one thing, हम इसमें स्पेसिंग करेंगे, and one after that spacing देने के बाद जैसे ही मैंने enter प्रेस किया, right, first ST and then enter, here it turn in ST, ST अपना ऊपर चला गया। I'm writing again, I'll write again, जैसे मैंने 2 लिखा, इसका फॉन्ट साइज छोटा हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, हमारा 2 अब विजिबल है, ठीक। हमने 2 लिखा, D and here one side, sorry, I press enter, I have to type again, that means कैप्स में नहीं जा रहे, NG Control Z, the common one, we'll do it again। See, this is all about spacing। आपने 1 और ST लिखा है, and if you put space mark तो वो टर्न नहीं होगा, तो we have to keep emphasis, हमें देखना है कि यहाँ पर spacing और number of button is very important, fine। So we'll write like 3
and when we press enter, it is done here, but not in the third place. Maybe some article issue was there, but still the format is same. Yeah, Preeti ma'am, font matters for it. Font, we have to type any that ND. We can write caps also and ND small also, but it will go जब हम enter press करेंगे. But first और ST के बीच में अगर हम spacing कर रहे हैं और then enter करेंगे, तो it will not turn. बस ये issue है कि we not press spacing. Spacing नहीं हमें press करना है. First हम 1 लिखेंगे, ND लिखेंगे, and then we have to press enter. अगर हमने spacing दबाया, तो वो change नहीं होगा. This matters actually. So in this way we can write first, second, third and so on. Now ये तो थे छोटे-छोटे symbols. Now come to the next thing. अब थोड़ी सी बड़ी चीज, tabular form. हमने Excel में बहुत सारी चीजें की हुई हैं कि Excel में calculation, minus, plus जो करना हमें Excel का सारा लेना पड़ता है Microsoft Excel में क्योंकि हमारे पास arrows and bullets और हमें calculation में बहुत easy हो जाता है. But हम MS Word में तो नहीं कर सकते ये. But एक trick है हमारे पास. हम MS Word में ही Excel का काम कर सकते हैं. This I will show you how to do it. Very firstly, I will write one more thing. One space. अगर हमने 1/2 किया and then we have to write space and we'll half. एक और चीज है जो मैं फर्स्ट और सेकंड के साथ ही आपको बताना चाहूंगी. I think it is not visible. Font size बहुत छोटा है, मैं इसको बड़ा कर रही हूँ. एक हिडन फीचर भी है कि हमें 1.5 लिखना होता है, तो हम ये हाफ बनाने के लिए 1/2 करते हैं, तो ये 1 के बराबर ही लगता है. अगर इसको हमें 1.5 दिखाना है, या तो हम 1.5 लिख देते हैं जब हमें मार्क्स अलॉट करने होते हैं. तो अनदर देयर इज अ ट्रिक कि आप 4 लिखिए, उसके बाद आप यू हैव टू राइट देयर इट इज यू हैव टू गैप 1-2 and once you press space it turn ये हाफ का साइन ले लेगा. राइट, आपने लिखा तो था 1/2, लेकिन जैसे ही आप स्पेस, इसमें चेंज क्या है, अभी तक हम एंटर प्रेस कर रहे थे, इसके लिए हमें स्पेस दबाना है, स्पेस बटन दबाना है, और ये हमें 1 के बाद भी स्पेस दबाना है, और जब हम 1 और 2 टाइप कर रहे हैं उसके बाद भी दबाना है. आई डू इट अगेन. मैंने 2 लिखा, गैप दिया, मैंने स्पेस दिया, अगेन मैंने 1/2 किया, and again I have to type space. तभी ये चेंज होगा. प्रीवियसली हम स्पेस नहीं दे रहे थे, बट हियर हम 2 लिखेंगे, स्पेस देंगे, 1/2 लिखेंगे, फिर से स्पेस देंगे, तब ये हाफ में टर्न होगा. Get it? We have to type 2 times space. Space matters. हमें दोनों टाइम स्पेस ही यूज करना है, एंटर यूज नहीं करेंगे हम लोग. दिस इज ऑल्सो नो इनहेरेंट फीचर, तो इसी के अंदर है, MS Word में ही है. नाउ दिस इज टाइम टू मेक अ टेबल. हम टेबल के लिए फिर से क्या करते हैं, हम इंसर्ट में जाते हैं, वी हैव टू इंसर्ट समथिंग. हम फिर टेबल रो और वो सिलेक्ट करते हैं कि 3 रो 4 रो. अब हम सिर्फ कीबोर्ड के सहारे से टेबल बना देंगे. लेट्स सी. वेरी फर्स्टली आई एम राइटिंग हियर, थोड़ा अपना पेज नीचे कर देती हूँ so that it is visible to each. Fine. So here I am writing. सबसे पहले हमें क्या लिखना है, प्लस. शिफ्ट दबाएंगे, हमें प्लस का साइन मिल जाएगा. ओके, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करना है. आई थिंक इट्स नॉट. हाँ, अब ठीक है. प्लस. फाइन. सबसे पहले मैंने प्लस प्रेस किया है, उसके बाद देयर इज सम डैश. ठीक है, 1, ये मैंने डैश दिया, तो मुझे अब मैं कॉलम के हिसाब से, आप देख रहे हो ना, डैश है ये अंडरस्कोर नहीं है, ध्यान रखना है. डैश प्लस किया, जितना मुझे डैश दबाना है, उसके बाद फिर से मैंने प्लस दबाया. ये मैं अपनी रोज और लाइन सेलेक्ट कर रही हूँ. प्लस, फिर से मैंने ये एरोज ली, देन अगेन आई डिड प्लस, फिर से मैंने एरोज ली, देन अगेन प्लस, अगेन एरोज. जितनी मुझे लाइन चाहिए, एरोज चाहिए, मैं उतने ही एरोज प्लस. ठीक है. सो ये प्लस क्या है, जितनी मैंने प्लस दिए हैं उतने ही मेरे बॉक्सेस आ जाएंगे. 1 2 3 4 5. लास्ट में प्लस होना चाहिए. अब देखिए, मैं
एंटर प्रेस करने जा रही हूँ। यहाँ तक समझ में आया? मैंने प्लस दबाया है, उसके बाद मुझे जितने बड़े कॉलम्स चाहिए, जितने बड़े कॉलम्स चाहिए, जब मैंने कुछ छोटे किए कुछ बड़े किए, सब तो यू एंड में जैसे प्लस आया आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर, मेरी टेबल बन गई। फाइन, मैंने प्लस दबाया, मैंने एरोस की जो मेरा डैश डैश लाइन है वो मैं लेती गई जितनी जितनी मुझे स्पेस चाहिए। इसके बाद मुझे एक और लाइन चाहिए, अब मैं क्या करूं? फिर से प्लस दबाऊं? नहीं, मैं दोबारा से एंटर प्रेस करूंगी। अगेन आई गेट इट हियर, सेकंड, थर्ड वन, फोर्थ। एक्चुअली अगर मैं अपने एरो बटन को फोर्थ लाइन तक नहीं ले जाऊंगी तो वही बड़ी होती रहेगी। वी हैव टू गो फॉर एंटर अगेन। हम कंट्रोल Z करेंगे, कंट्रोल Z करेंगे। नाउ कम फॉर द नेक्स्ट। फाइन, यानी कि अगर हम इसी कॉलम में, एक चीज ध्यान रखिए, सी हमारा अगर कर्सर यहाँ है, लास्ट कॉलम में है और मैंने एंटर दबाया तो यही लाइन और बड़ी हो जाएगी। समटाइम होता है ना, हमें ये कॉलम बड़ा चाहिए, सेकंड वाला छोटा चाहिए, तो अगर मैंने कॉलम के अंदर ही एंटर प्रेस किया तो वो कॉलम बड़ा होगा। बट अगर मैं इसको बाहर ले जाके एंटर प्रेस कर रही हूँ, जैसे मेरा अभी ये लास्ट में और मुझे एक और लाइन, तो ये कर्सर मेरा बाहर होना चाहिए और मैं एंटर प्रेस करूंगी तो तीसरी लाइन आ जाएगी। बस हमें इन चीजों का ध्यान रखना। राइट, तो इस तरह से मैं 4 लाइन 4 लाइन कुछ भी दे सकती हूँ। अब ठीक है, ये शायद हो सकता है मेरे बच्चों की लिस्ट है, तो मैंने यहाँ लिख दिया सीरियल नंबर। ये मेरे सीरियल नंबर हो गए। फाइन, यहाँ ये मेरा ए कॉलम हो गया, कुछ भी, ये मैं ए बच्चों का कुछ करूंगी। ये मेरा बी हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया, ये मेरा ये मेरा डी हो गया। अब इसमें मुझे सीरियल नंबर, ये मेरे 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है। अब मैंने लिखा कि ए बच्चे के ना 5 मार्क्स आए थे, अच्छा बी के जो है 2 मार्क्स आए, सी के 7 मार्क्स आए। Here it is, मैंने एंट्रीज कर ली कुछ भी, ये 23 आए। द सेम वे हमने मान लीजिए वी हैव मेड अ टेबल, मैं पहले से मैं बना के रख सकती थी, बट आई वांट टू शो यू ईच एंड एवरीथिंग कि कैसे हम टेबल्स बना के कैलकुलेशन भी करेंगे। अब 5 है या चलो 90, कुछ बड़े छोटे सारे डिजिट्स ले लिए। अब मुझे इनका टोटल चाहिए, अब मुझे टोटल करना है, हो सकता है यहाँ पर बड़े बड़े डिजिट हो। अब बिना एक्सेल में जाए, आई हैव अ कोड, आई गिव यू कि आप कैसे टोटल करेंगे। तो एक की है F9, आप कंट्रोल और F9 जब दबाएंगे आपको एक कर्ली ब्रैकेट मिलेंगे। आई एम रिपीटिंग, कंट्रोल F9, कंट्रोल F9, कर्ली ब्रैकेट आ गया। अब जो भी कोड है वो हम इसके अंदर लिखना है। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज कंट्रोल F9। नाउ अब कंट्रोल F9 में सबसे पहले इज इक्वल टू साइन। आफ्टर दैट मुझे जो भी प्लस करना है, जैसे मुझे करना है 5, दूसरा मेरा था प्लस 2, दूसरा चीज क्या है मेरा 2, एंड प्लस फिर मेरा है 7, सॉरी इक्वल टू हो गया। ठीक है, मेरे जितने भी नंबर है हमने कर्ली ब्रैकेट में पहला हमने सिंबल लगाया इज इक्वल टू लगाना जरूरी है। जितने डिजिट है उनको प्लस करके लिख लिया, 5 प्लस 2 प्लस 7 प्लस। फाइन, आफ्टर दैट जैसे ही मैं अब यहाँ पर फिर से F9 जो बटन है मैं उसको प्रेस करूंगी। ठीक है, हमने F9 से स्टार्ट किया था, F9 से हम क्लोज कर रहे हैं। सो हियर वी हैव टू राइट कंट्रोल F9। Control Z. Let's see. Okay. So 5 press F9, curly brackets done. I think spacing issue तो नहीं है. Let me check. Okay, because it work. ये बहुत important है. Let's see. हम सेकेंड चीज, दूसरी चीज एक और सिंपल करके देखते हैं कि यहाँ पर हमें अभी चेक करना है। मान लीजिए हमारी एरर आई, हमारा प्लस नहीं हुआ, तो लेट्स चेक कि हमारी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसके चेक करने के लिए आई हैव अ ऑप्शन। अगेन मुझे इसका सम करना है और हमें ये जितने भी एरोज है लेफ्ट साइड में करना है। बहुत सारी डिजिट है तो मुझे नहीं पता व्हाट वी हैव टू डू।
Again, we have to type Control F. Then we have to write is equal to. Then we have to write sum. 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 After that, we have to start bracket. और मुझे लिखना है सारे लेफ्ट हैंड साइड का LEFT and I have to close the bracket. हमारा कर्ली ब्रैकेट स्पेसिंग से बाहर नहीं जाना चाहिए. Wait. Sometime it happened. I did practically. But here we have, there's a challenge you have to face. But I'll really do it for you. Next, I have a third option now. Let me check. अब मुझे 7 और 78 का सम चाहिए. Let's see if it works or not. Again, we have to press Control F9. Then we have to write is equal to. Then we have to write SUM. Then we have to write here and above ABOVE. Above we have to close. हमारे बॉक्स में कर्ली ब्रैकेट बाहर नहीं जाना चाहिए. दिस इज द मेन पॉइंट. लेट्स सी इफ वी प्रेस F9 इट इज डन और नॉट. इज नॉट वर्किंग, यानी कि मुझे अपने ब्रैकेट्स को थोड़ा सा और क्लोज, इसको हमें ब्रैकेट बाहर नहीं जाना चाहिए. दिस इज द पॉइंट. लेट्स सी हम इस चीज को इस ब्रैकेट के बाहर करके देखते हैं, क्योंकि ये एरर हो सकता है. अगर ब्रैकेट की, अगर हमारे कॉलम की वजह से है तो यहाँ करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है. लेट्स सी. Control F9. कर्ली ब्रैकेट मुझे मिला. then I have to write is equal to, फिर मैंने प्रेस किया 2. then we have to write plus 3 plus 1 plus. Fine. After that we have to write press F9. F plus should be not there. Plus should be not there. F9. It's okay, Preeti ma'am. I guess sometimes, you know, when we learn the things in a new manner. Absolutely, ma'am. But I never stop trying because again we have a multiple time as well. अब हम multiply भी करके देखते हैं because the same thing I did at the 4 PM and it is done. So let's see. I have an option कि अगर plus नहीं हो रहा है, multiply भी हम same format में करते हैं. Let's see. We have to go for curly bracket, Control F9. And in a bracket we have to write is equal to button. We have to write 2 and then we have to write star. जहाँ पे हम multiply करते हैं, जो हमें 8 के प्लस मिलेगा, multiply and then we have to write 6 and after that we have to write F9. Maybe hopefully it's not a spacing issue. Let's try. It should be there. F9 or Control F9. I don't know how it not works, but we have to do this. Let's try again. एक और चीज है. Let's try. जैसे हमारे ABCD हैं, 4 ऑप्शन है, 5 है, 5 वाले ऐसी वर्क करते हैं. अगर एक में भी वर्क किया तो I think that I have to prove the audience कि there are methods. Let's see. अगर मान लीजिए मुझे सबके टोटल करने हैं ABCD 1 2 3 और मुझे इसमें से सिर्फ A का 2 प्लस करना है, जैसे मुझे 23 प्लस करना है और 78 प्लस करना है, मुझे 23 प्लस नहीं करना है. सो देयर इज अगेन वी हैव अ मेथड. वी हैव टू राइट Control F और हमें उसके बाद मिल जाएंगे हमारे कर्ली ब्रैकेट. देन वी हैव टू राइट इज इक्वल टू, देन वी हैव टू राइट A का 2. हमें 23 लेना है ना, 23, तो ये क्या है A का 2. सो आई हैव टू राइट A and 2. A we have to write in caps. A2 plus. अब दूसरा मुझे चाहिए 78, यानी कि C का 2. So we have to write C and I have to write 2. That hopefully I think, but ये हमारे ब्रैकेट में ही होता है. So I
do that as well. मैं ब्रैकेट में ही करके देखती हूँ क्योंकि ये टैबुलर फॉर्म है. First time it happened that it's not work, but still this last time I'll try. Please spare me. I'll try my best. The same thing I'm trying. Control. We got curly bracket. Thanks for the patience, audience. I know आप भी पूरा ही वेट कर रहे हैं that it will work or not. But let's see. So I'm doing. If it not work, I'll move to second one. Don't worry. Yes, Pooja ma'am, pardon. We are appreciating your patience and dedication as well. Yeah, hopefully, thank you. So again, we are trying to keep it in common क्योंकि हम लोग इसी कॉलम की कैलकुलेशन को प्लस कर रहे हैं. So we'll again go for A का 2. So is equal to के बाद we have to write A 2. Then we have to write plus. Then we have to again write C का 2. So you have to write C and 2. Hopefully it works. It should be work. या तो is there'll be another key. It worked that time. So maybe I have mistaken something. Let's see. Okay, I can do one more thing. See, अगर मुझे 78 और सिर्फ अगर मैंने सिलेक्ट किया कि 78 और 7 को प्लस करना है, तो let's see. So I'll go for. Suppose मैंने यहाँ पर अगर दोनों के हमारे प्लस आते, ठीक है, not work. Let's see. अगर मैं प्लस कर रही हूँ तो इस 7 here I got 14. Let's see. I'll do manually over there. And अब मुझे इसका तो सम मिल गया 14, बट मुझे ये नहीं पता कि मुझे इसका सम करने के लिए बहुत टाइम लगेगा. तो मैं अब what can I do? I'll copy 14 over there. No, I'll paste 14 over there. और क्योंकि ये तो इसका सम है नहीं, so what I'll do the right click and here after right click I got the updated field. Is my updated field over there? There is choose, there is a right click. I worked on it with updated field. We got generally that option updated field after right clicking. But it's not showing here. I'm checking in search. I have not used the current symbol, that was not search. So I'm writing here and you can just check. जब भी आप sum को और किसी भी को अगर select कर रहे हैं, you'll go for right click, you got the updated field. अब जब भी आप calculation करते हैं with symbol उस code के साथ. So I think we have not done the calculation with code. That's why it's not visible. Updated field. So let's see it will work or not. क्योंकि हमारा प्लस भी वर्क नहीं किया और मल्टीप्लाई भी वर्क नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आई थिंक यहाँ पर की का प्रॉब्लम है. तो अगर मैं कर्ली ब्रैकेट कंट्रोल F9 and if I do, give me the last time 2 plus 2 and then I have to press F9, should be this. Control plus F9. I hope it's not that. I did with control F9. I did with because it's already there formulas is equal to 2 जो भी हम प्लस कर रहे हैं and after that हम जैसे ही press F9 बटन दबाते हैं तो calculations always done. I'm writing here. मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ. Let's try. आप लोग जरूर ये ट्राई करिएगा अपने MS जिनके पास भी फोन है, आप MS या लैपटॉप पे बैठे हैं, just try. आप ये करके देखिए, क्या पता मेरे कुछ साइन सिंबल या यहाँ कुछ टेक्निकल एरर है. Let's try. I'll give you the formula because it really worked. And many times I did yesterday, I did today as well. So if something happened, कुछ tool या pressing का होगा, I'm repeating the formula. आप वो formula लिखिए और अगर जिसका भी होता है, please, give me the thumbs up and you can unmute or just tell me. I'm repeating the formula. We have to just control F9. Control F9. After that, there will be is equal to sign
and after that we have to जो भी हमें प्रेस करना है कि 2 + 1 and this is the only one. और जैसे हम F9 दोबारा प्रेस करते हैं, so we got our calculation. हमने कंट्रोल F9 किया तो भी मेरा तो नहीं हो रहा है, but it you know it's test and improve it formulas. But you know, sometimes it happened, it did with me. Practically, I got failed. So really not able to understand audience, but truly it is generally did. Shailja ma'am, that she raised her hand. Sir or ma'am, please. Yeah, actually, I wanted to tell something. That is it. The reason could be that when you typed that, no, the figure after the figure, it was that square, like, you know, like when you showed the previous thing. At that time, one square like that it came, no, or whatever that upper this thing. So all the fonts are lying in that size only. So Okay. when if you you got it, you got my point. Got it, Shailja. So could be that. You can just try that. Really thankful that she got it. मैंने कहा ना फोन का what she said कि आपने फोन साइज जब सिलेक्ट करके बढ़ाया ना, sometimes let's try हम इसे next. So it is. Am I right, Shailja ma'am? Also, Shailja ma'am, you're there? Let's try. So actually, when you did that square, one square like that, so the font is in that square size, not the actual size. Okay. That's what I feel. You can try that. We can try that. Yeah. Okay. Okay. Thanks for correcting me. So now I think with this suggestion, with the help of the suggestion, I can prove myself. Let's try. I'll do it here. हम इधर करके देखते हैं. Control F9, and we got is equal to, and we write 2, and we have to write plus. There is 1. We write F9. Control F9. We have to write is equal to, then we have to write 2 plus 1 plus F9. Maybe if I have to press, okay, it's okay. It didn't work. Maybe some technical error. We'll get back to you, and if possible, in the same group, I'll give you the example or give you the problem also. I really work for it, and I'll tell you. मैं बताऊंगी कि what I did something wrong. चलो next हम next point पे आते हैं. ये formula somehow थोड़ा सा fail हुआ है, but formula is tested, approved. तो कुछ technical तो है that I also didn't get it कि क्या हुआ है. So I think it's not a good idea to waste a time. We should move forward. So कुछ एक secret idea जो कि हमारी privacy matter के लिए है कि generally what happen कि हम papers, you know, sometime हम कंप्यूटर्स रूम में या हमारे कंप्यूटर लैब में भी अपने पेपर्स बनाते हैं और यू नो समटाइम वी सेव ऑन डेस्कटॉप और समटाइम ना जैसे स्टूडेंट आते हैं दे यूज्ड टू से यूज द डेस्कटॉप एंड ऑल. तो हो सकता है हमारे डॉक्यूमेंट को कोई देख ले या हमारे लैपटॉप में कुछ सीक्रेटिव डेटा है और कोई अगर उसे देख मतलब वी डोंट वांट टू एनीवन कि हम नहीं चाहते कि हर कोई से खोले. सो व्हाट इज द सेम वन कि हम बहुत सारी सेटिंग्स करते हैं तो उस सेटिंग से बचने के लिए आई हैव अनदर टूल. So what we can do, see, जैसे whatever I've done here, and I want to close my document. अगर मुझे नहीं करना है, मुझे सब सेव करना है, तो सबसे पहले मुझे इसे सेव करना पड़ेगा. I'll go for Control S. जैसे मैं सेव करने गई, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे सेव में इसको टाइटल दे देती हूँ कुछ भी. Fine, जैसे मैंने दिया it's MS Word. Fine, MS Word. मैंने इसे टाइटल दिया MS Word. अब मैं इसे सेव कर दूंगी बट नो आई नॉट गो फॉर सेव. आई नॉट गो फॉर सेविंग. यहाँ देखिए सेव के पास एक टूल बटन है. राइट, हम टूल बटन में जाएंगे, गो फॉर द जनरल ऑप्शन. राइट, हमने कंट्रोल एस दबाया, हम टूल पे गए, हम जनरल ऑप्शन पे आ गए. हियर दे विल आस्क पासवर्ड.
पासवर्ड हमने सिंपल कुछ भी 1 2 3, मैंने 1 2 3 लिखा है, here I write 1 2 3 फाइन, और मैंने कहा कि रीड ओनली, कि ठीक है लोग देख लेंगे पढ़ लेंगे बट उसमें कुछ एडिट नहीं कर पाएंगे। मैंने रीड ओनली किया, रिकमेंड किया, देयर वर सो मेनी थिंग्स वी कैन अपने आप हम होल्ड कर सकते हैं, और मैंने ओके बटन दबाया। Here again they ask the password, री एंटर करिए अश्योरेंस के लिए, अगेन 1 2 3 I pressed, they will ask 2 times and now it's done, fine, it's saved. Let's see, now I'll again go to, ये मेरा डॉक्यूमेंट में सेव हुआ है, अब हम इसे खोल के देखते हैं कि क्या इसमें काम किया है कि नहीं। हमारा था MS Word, I think this one, अब सी आई एम एबल टू सी, मैंने देख लिया। अब देखिए आप कमांड के बाद यहाँ पर इफ आई राइट टू able to read but not able to delete it. Again, if I go with Control S. Just close the file, then only it will get done. That means File and reopen it. Yes, Pooja ma'am, your voice is not clear. You're saying something? I'm saying, I guess we need to close the file and then reopen it. Yes, yes, Yes. yeah, yes. Okay. So again, we have to go. Hopefully, it works. Look at password manga. That means it works. I have to give 1 2 3. Again, it's 1 2 3. So this point goes to Pooja ma'am. She helped me because we have to close it first, and no, we are also learning process of silly things that stuck us. Same thing happened. तो हमारा खुला, here it is. तो मेरे पासवर्ड देने के बाद ही मैं इसमें कुछ कर पा रही हूँ. So it required the password. तो जनरली हमें क्या करना है, सिर्फ टूल्स पे जाना है, जनरल सेटिंग में जाना है, और here they will ask the password. Fine. With all these things, MS Word के साथ साथ again I have an option with, I'm going to type with the Google Drive. Like how to, अब जैसे मैम ने बोला ये तो रैंडम पैराग्राफ आ गया, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो अपना फेवरेट वन पैराग्राफ या स्पेसिफिक थीम बेस्ड पैराग्राफ चाहिए. सो हाउ वी कैन इंसर्ट इट, वो तो फिर से हमें कॉपी पेस्ट जाना पड़ेगा सो लॉन्ग वे, बट स्टिल वी हैव अ ऑप्शन फॉर दैट. विल टेक अ हेल्प ऑफ गूगल बाबा. हम गूगल पे जाएंगे एंड टुडे आई एम गोइंग टू शो यू how we can make a paragraph by using that audio. So I am going to Google Drive. Here we can go for the Drive. Opening. Okay. यहाँ पर देखिए न्यू, हमने न्यू पे क्लिक किया, ओपनिंग टाइम. हम गूगल ड्राइव पे गए, हम न्यू पर गए, हमने उसे ओपन किया, एंड वंस इट विल ओपन इट विल कम इन द डिफरेंट फॉर्मेट. इधर सॉफ्टवेयर चल रहा है, नेटवर्क इशू है मे बी. सो वन इट विल कम, इट विल, ये हमें एक अलग फीचर देगा. शेयर द फाइल इन कंप्यूटर और नो, share the file and important details. मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड करती हूँ. ये हमारा चैट सेशन आ गया. पेज मैम क्लिक ऑन न्यू. मैम हम क्या गए, हम लोग गूगल ड्राइव पे गए, हम लोग हमने गूगल ड्राइव खोला. वी हैव टू क्लिक हियर न्यू. हम न्यू पे गए, यहाँ पर हम गूगल डॉक्स, फाइन, आई एम रिपीटिंग इन, हम गूगल पे गए, हमने ड्राइव खोला. वो जो 6 डॉट्स है ना, वहां से भी जा सकते हैं. 6 डॉट आप टाइप भी कर सकते हो. वहां पर जब गूगल के पास 6 डॉट्स होते हैं ना, उसमें हम ड्राइव पे गए, यहाँ पर गूगल डॉक्स खोला हमने. ठीक है, गूगल डॉक्स पे आ गए हम लोग. जैसे हमने गूगल डॉक खोला तो हमारे पास गूगल डॉक का फीचर आ जाएगा.
पे आप देख रहे होगे मैम, ये कुछ फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ये सारी चीजें लिखी है. विल गो फॉर द टूल्स. हम टूल्स पे गए. Here there is, we got the option. हम टूल्स पे गए, फिर वॉइस टाइपिंग पे आए. ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन. हम सबसे पहले गूगल ड्राइव पे गए, गूगल डॉक्स खोला. गूगल डॉक्स पे हमने न्यू व्यू पे खोला, तो वहां पर गूगल डॉक्स में जैसे हमने खोला तो हमें ये मिल गया फॉर्मेट. हम टूल्स पे गए, उसके बाद हम वॉइस टाइपिंग पे आ गए, हमने क्लिक किया. फाइन. अब सी, मेरे पास कुछ भी लाइन्स है, फॉर्मेट जो आपका फेवरेट पैराग्राफ है, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, इसके लिए आपको अपना माइक्रोफोन या स्पीकर के पास रखना पड़ेगा, आपको वेरी क्लोज. जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी और मैं जो भी बोलूंगी यहाँ पर टाइप होगा. फाइन, लेट्स सी. Today there are many more people in the world than there were 2 centuries back. Let's see it work or not. Right. देखिए टाइप हो गया. Today there are many more people in the world. There were too many centuries back. Fine. The same way we can again do this. We can check as well. या हम कंटिन्यूस भी बोल सकते हैं. Fine. So to feed the growing numbers and the large areas, forests have been cleared. Okay, it worked. Let's see. So very thankful to each and everyone. I think it is already 6:10. I am exceeding the time. So here I need to stop. Thank you so much. I am back. I'm going to back. Ma'am, please repeat. There is a link I'll share with you. So कुछ frequent shortcuts हैं that I want to give you as a takeaway, and rest is all my part. Really apologize for that why not formula worked, but it tested and proved it really worked, and maybe there's some key and error, it did not work. Please try it. This is my request to each and everyone. I'll type the formula in the chat box as well. Please इसे type कीजिएगा. Now over to you. I've already exceeded the time. मैंने सोचा ये था कि मैं 6:50 पे 5:50 पे खत्म कर दूंगी. So sorry for that. मैंने आप लोगों का ज़्यादा time लिया. Over to you. Please give your feedback. That's completely okay, Preeti ma'am. It was really wonderful session. Honestly telling you, whatever you have taught, all those things were new. We couldn't expect, we like people feel like that when MS Word comes, then it means that how to bigger the font size, how to change the font size, how to make it colorful. These things are only lying in Microsoft Word. But the things which you have taught today, those are all new things. And on other side, I really appreciate your continuous effort for which you were, putting up to correct the things which did not went well due to some technical things or whatever. But really, I really say that only learners, they can impart knowledge. When we learn, only then we impart knowledge. The people over here, they have also learned many of the things, and then they are going to impart it. If we'll not learn it, we'll not get anything. So for that learning, we really salute you. You made that learning happen. आपने इतना effort किया, खुद भी कुछ सीखा, और हमें सिखाने के लिए खुद न्यू चीजें आपने लर्न करी. That was a wonderful session. I could see the messages. I would really appreciate if you guys will just unmute, raise your hand and unmute and speak few words for today's session. Surely. I really want your feedback, please, audience. Audience, please, we would love to see your raising hands and then speaking, please. Thank you so much. Meanwhile, I'm sharing the shortcut link. Yes, Poonam ma'am. Yes, ma'am, you really presented so nicely. It was a wonderful session. We really learned a lot, and this is technology. It happens कि कभी भी कुछ क्या भी हो सकता है. तो हमें तो दोनों, हमें तो हर तरह से तैयार रहना है ना. And you taught us so many shortcuts and all. और जिस दिन shortcut नहीं काम किया, उस दिन long way में कर लेंगे काम. That's the spirit. That's wonderful. Thank you wonderful so session. And thank you so much. That's really wonderful. Thank you so much. Can we get the recording of this, please? Yes, Nisha ma'am, we'll be surely sharing the recording in the group. And by today, we'll surely do that.
Thank you so much, Pratika ji ma'am, Suchitra ji, Simi ji, Avanti ji, Mohinder Pal ji, Mehak ji, all of you, thank you so much. Once again, thank you so much, Preeti ma'am, for putting up such a wonderful session. The great learning happened. Dear audience, I hope all of you have learned a lot. We have already circulated the certificate link. Please, if you want the certificate for today's session, you can surely go ahead with that. Thank you so much. So we'll be meeting again in our AIF state webinars. Let's see when. So that's the secret. We'll keep on floating the things. Thank you so much. Thank you, dear audience, for sparing your valuable time and keeping patience. So here we are signing off. See you again next time. Thank you so much. Thanks to you, ma'am. You're such a wonderful host and everything is so nice, na? Thank With you. patience. And at the age of 52, if I'm learning, so I feel proud that I'm learning at least. Yes. You're making us learn new things. Thank you very much. Thank you, Simi ma'am. Thank you so much. This is the spirit, when we think that learning can never end and age doesn't matter for that. There is always something new to learn. Thank you, ma'am. Thank you. All right, dear audience. Thank you. Bye-bye.